دودھ دینا فرض ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ اپنے بچوں کو 2 سال تک مکمل اپنا دودھ پلاؤ۔ تو دودھ سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ بدقسمتی دیکھے ہماری کہ کبھی ہم نے بھیڑ کو نہیں دیکھا ہے، بھیڑ کے بچے کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ بکری کی دودھ پی رہا ہو، کبھی بکری کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ ہاتھی کا دودھ پی رہا ہو، کبھی اونٹ کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ کسی اور جانور کا دودھ اپنے بچے کو پلا رہے ہو۔ لیکن ہم خود اشرف المخلوقات کہنے والے ہم انسان اپنے بچوں کو گائے کا دودھ بھی دیتے ہیں، بکری کا دودھ بھی دیتے ہیں، بھیڑ کا دودھ بھی دیتے ہیں، اور کچھ بھی نہ ہو تو فارمولا کیمیکل سے ملا ہوا دودھ دینا شروع کر دیتے ہیں۔ ابھی آپ سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہیں انشاءاللہ۔ یہ بہت ہی پیارا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے، یہ پوری پریگنینسی میں سب سے آسان اور سب سے پرآسائش یا آرام دینے والا ٹرائمیسٹر ہوتا ہے۔ اس میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس وزٹ ڈیفینیٹلی کرنی چاہیے، یا دوسری وزٹ ہوگی، اور وزٹ میں آپ کو وہ کچھ انویسٹیگیشنز کرنے کو کہیں گے جو بہت ضروری ہے۔ آپ کا بلڈ گروپ کا پتہ ہونا چاہیے، آپ کے ہیپاٹائٹس کی کیا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے وہ چیک ہونا چاہیے، آپ کا بلڈ پریشر مسلسل تواتر کے ساتھ چیک ہوتا رہنا چاہیے، اور اس کے علاوہ شوگر کی بھی ٹیسٹ ہو جانی چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ حاملہ خواتین کو شوگر کی شکایت ہو جاتی ہے جس کے بچے پہ بڑے اثرات ہوتے ہیں، تو اس کو کنٹرول کریں گے انشاءاللہ۔ اگر بلڈ پریشر ہائی ہے تو اس کو کنٹرول میں رکھیں گے، اور کوشش کریں گے کہ کاربوہائیڈریٹ جیسی چیزوں سے پرہیز کریں، اور زیادہ بیلنس ڈائٹ کھائے، زیادہ کھانے کے بجائے بیلنس ڈائٹ کھائے۔ اور اس ٹرائمیسٹر میں ڈاکٹر کی وزٹ کی انویسٹیگیشن کے بعد الٹرا ساؤنڈ ہوا ہوگا، بچے کی موومنٹ معلوم ہو چکی ہوگی، یہ بچہ اب اس پوزیشن میں ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر کے درمیان میں کہ وہ سانس لے سکتا ہے، وہ باہر کی آوازوں کو محسوس کر رہا ہے، اور وہ ان کے اثرات ہوتے ہیں اس بچے پہ۔ اگر آپ کوئی پازیٹیو ایکٹیویٹی کریں، قرآن پڑھیں، اچھی باتیں کریں، لاجکس حل کریں، اور خود کو مصروف رکھیں، ان کے اثرات بچے پہ بہت اچھے پڑیں گے۔ کبھی بھی اسموکنگ نہ کریں، الکوہل استعمال نہ کریں، کبھی بھی ایسے ٹینس انوائرمنٹ میں نہ رکھیں، ایسا نہ ہو کہ ان کو کہیں ضرورت پڑ جائے کہ ڈپریشن کی، جس کے بچے پہ بہت برے اثرات نافذ ہو سکتے ہیں۔ تو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں ہم تشنج کا دوسرا ٹیکہ بھی لگا دیں گے، اور اس طرح یہ نارمل ڈائٹ کے ساتھ ایکسرسائز، الکوہل اور سگریٹ سے پرہیز، زیادہ کھانے کی بجائے بیلنس ڈائٹ، یہ ہے سیکنڈ ٹرائمیسٹر، اور یہ ہمیں تیار کرتی ہے تھرڈ ٹرائمیسٹر کے لیے۔ اور تھرڈ ٹرائمیسٹر میں ہم ابھی ہمارے بچہ وزن گین کر چکا ہوتا ہے، اس کی دل کی دھڑکن محسوس کی جا سکتی ہے، ایون اس کی ماں بھی محسوس کر رہی ہوتی ہے، وہ بھی محسوس کر سکتی ہے۔ اور اس ٹرائمیسٹر میں ہمیں کچھ چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے، کیونکہ اس میں آپ کو سانس میں تھوڑی سی تکلیف ہوگی، کیونکہ زیادہ ڈائٹ کھانے کی وجہ سے، یا نارمل پوسچر جو آپ کا پازیٹیو پوسچر ہے وہ نہ رکھنے کی وجہ سے پہلے سے کمر پہ پریشر ہوتا ہے، تو ڈائٹ کم بٹ بیلنس ہونا چاہیے۔ اور یہ اس طرح آپ کو یہ ہارٹ بھرنے کا جو پرابلم ہوگا، ایسیڈیٹی جس کو ہم بولتے ہیں، اس کے لیے آپ چاہیے کہ اگر وہ ہو رہا ہے تو آپ کو چاہیے کہ آپ کچھ غذاؤں میں تبدیلیاں کریں، کچھ مرچ مسالے والی چیزیں سے پرہیز کریں، تو یہ اس کا بھی تدارک ہو سکتا ہے۔ ہاں، ایچ پی کا ٹیسٹ زیادہ ضروری ہے، کیونکہ بلڈ جو ہے وہ ماں کے لیے اور بچی دونوں کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے۔ اگر ایچ پی اچھی ہے تو بچہ بھی صحت مند ہے اور ماں بھی صحت مند ہے۔ کچھ خطرناک علامات بھی ہو سکتے ہیں 2 ٹرائمیسٹر میں، جن کو بھی ذکر کریں گے، جس میں ایک ہوتا ہے شدید درد، سر میں شدید درد، نظر دھندلا دینا، اس طرح کی تکلیف ہو، تو یہ فرسٹ سیکنڈ ٹرائمیسٹر ہو یا تھرڈ ٹرائمیسٹر ہو، آپ کو ہر صورت میں ڈاکٹر سے رابطہ کرنا چاہیے اور ڈاکٹر سے ملنا چاہیے۔ ایک بے وقت بلیڈنگ شروع ہو جائے، اس سے ایک ڈر ہوتا ہے کہ پریمیچور چائلڈ تو نہیں آ رہا، تو اس صورت میں آپ ہر کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ تیز ڈاکٹر کے پاس پہنچے، اور خدا نخواستہ کبھی آپ کو محسوس ہو سیکنڈ ٹرائمیسٹر میں یا تھرڈ ٹرائمیسٹر میں کہ آپ کا بچہ موو نہیں کر رہا ہے، تو یہ بھی خطرناک علامت ہے۔ اس سلسلے میں بھی ہر صورت میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانا چاہیے۔ تو 4 چیزیں خطرناک ہے جس کو ہم نارمل رکھتے ہیں۔ اگر خدا نخواستہ شوگر ہے تو اس کو نارمل رکھیں گے، خدا نخواستہ بلڈ پریشر زیادہ ہے یا کم ہے اس کو نارمل رکھنے کی کوشش کریں گے، اگر بلیڈنگ ہوئی تو ہاسپٹل پہنچیں گے، اور
उनको डीमा का ख्याल रखेंगे, कहीं जिस्म में सोजन इतनी ज्यादा तो नहीं हो गई है कि पूरा जिस्म सूजा हुआ हो, तो इसे डीमा से भी बचना है। ये सब खतरनाक अलामात में है। अगर हमने इसका केयर की, इस चीज़ों को गौर से देखा और ख्याल और एहतियात रखी, तो इंशाल्लाह सेहतमंद बच्चा नसीब होगा। थर्ड ट्राइमेस्टर में आपको तशन्नुज का तीसरा टीका भी लगाना चाहिए, जो आने वाले बच्चों को जटकी की बीमारी से बचाएंगे। अब हम सेकंड ट्राइमेस्टर और थर्ड ट्राइमेस्टर को हो चुके हैं, लेकिन ये बहुत बड़ा काम होने वाला है, खूबसूरत बच्चा आने वाला है। इसके लिए प्लानिंग जरूरी है। प्लानिंग हमने की होगी पहले दिन से, क्योंकि हम 1000 गोल्डन डेज के ऊपर ही चल रहे हैं। हमने प्लानिंग की है, तो हमें पता है कि हमारे बच्चे की पोजीशन क्या है, क्या डिलीवरी नॉर्मल है, क्या डिलीवरी एबनॉर्मल है। अगर डिलीवरी नॉर्मल है तो फिर भी हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर एबनॉर्मल है तो उस सूरत में तो बिल्कुल एहतियात करना चाहिए, उस हॉस्पिटल चले जाएं जहाँ पे ऑपरेशन थिएटर हो, जहाँ पे गायनेकोलॉजिस्ट हो, जहाँ पे ब्लड बैंक हो। अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो फिर भी किसी भी नज़दीक खातून, किसी भी बीचू में लिचवीज होती हैं जो इस काम को सरंजाम देती है, नॉर्मल डिलीवरी वहाँ से आप आराम से हो जाती हैं। अक्सर लोग परेशान होते हैं कि हमारे पास पैसे नहीं होते, तो क्योंकि हमने इतनी बड़ी चीज़ प्लान की है और एक इंसान दुनिया में आ रहा है, तो इसके लिए भी हमें प्लानिंग करनी चाहिए। अगर हमारे कोई बच्चे हैं और हम उन पे 200-300 रुपये रोजाना खर्च कर रहे हैं, तो अगर हम उस 200 रुपये को एक खजाने में या किसी गड़े में डालना शुरू कर दें और वो वहाँ सेव होता रहे, तो आप यकीन जानिए कोई 270 दिन है, अगर आपके पास 200 दिन का भी चांस आ गया तो आपके पास 20 से 25 हजार रुपये जमा हो चुके होंगे। आप किसी भी मुनासिब हॉस्पिटल जाकर अपनी डिलीवरी कर सकती है। अच्छा, डिलीवरी हो गई तो डिलीवरी के बाद भी कुछ खतरनाक अलामत थे। डिलीवरी हो चुकी है, नॉर्मल डिलीवरी थी, एबनॉर्मल थी, अच्छी हुई है तो खुशी का मौका है, अल्लाह ने नेमत रहमत में से कुछ अदा किया होगा। लेकिन अभी बच्ची की सेहत और माँ की सेहत अभी भी नाजुक है। ऐसी हालत नहीं है कि हम तसल्ली से एक साइड पे बैठ जाए। हमें बच्चे को तो उसी वक्त डॉक्टर से मुआयना कराना चाहिए और उनको BCG, जिसमें आने वाले TB से खुदा ना खास्ता कोई मसला उसको TB का हो तो वो ना हो तो BCG लगाएंगे, जो पहले ही दिन जरूरी है या पहले हफ्ते जरूरी है, वरना 15 दिन के अंदर अंदर जरूरी है, तो वो हम लगाएंगे। माँ का चेकअप होगा, हम जल्दी नहीं करेंगे, हम हॉस्पिटल छोड़ने में जल्दी नहीं करेंगे, हम 48 घंटे गुजारेंगे और वहाँ पे उनका केयर होगा। वहाँ पे खतरनाक अलामत हो सकते हैं, और खतरनाक अलामत ये है कि बच्ची की नाफ जो कटी हुई है वो जगह कहीं नीला तो नहीं हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसमें इन्फेक्शन पड़ गया है, उसका भी ख्याल रखना चाहिए। बच्चे को बुखार आ जाए, तेज हो जाए, ये भी खतरनाक अलामत है, इसका भी डॉक्टर ख्याल रखेंगे इंशाल्लाह अगर आप हॉस्पिटल में होंगे। और साथ में चूंकि माँ, उनका भी ब्लीडिंग का ख्याल रखा जाएगा, क्योंकि अभी प्लेसेंटा पूरी तरह ज़ाहिर नहीं हो चुका होता है, तो खून फिर भी आ रहा होता है और कुछ दिनों जारी रहता है, तो उस खून की भी एक मिकदार होनी चाहिए। अगर हम 1 घंटे में 2 या 3 पेट बदल रहे हैं तो इसका मतलब है खातून खतरे में है। अगर उसके बाद भी खातून को कोई झटके, बेहोशी के कोई वाक़यात हो रहे हैं, तब भी बहुत ज़रूरी है कि हम डॉक्टर के पास जाएं। बच्चा अभी 1 महीने का हुआ है, बच्चा अभी पहले दिन का है और पहले दिन में सबसे ज़रूरी चीज़ जो है वो उनके माँ के साथ अटैचमेंट पैदा करना ज़रूरी है। माँ को चाहिए कि बच्चों को अपने स्किन के साथ, अपने चमड़े के साथ गले से लगा के रखें और उनको गर्माइश प्रोवाइड करें। बच्चे को और माँ के दरमियान में अटैचमेंट पैदा हो जाएगी। फिर वो जो दूध होता है पहला वाला, जिसको हम इंग्लिश में कलेस्ट्रम बोलते हैं, या ऊपरी वाला दूध या गाढ़ा दूध, या जिसको पश्तो में, अगर पश्तो वाला कुछ सुन रहा है तो वार्गा बोलते हैं, वो बहुत जरूरी है बच्चे के लिए। पहले आधे घंटे के अंदर अंदर माँ को चाहिए कि अपने बच्चे को ये कलेस्ट्रम वाला दूध जरूर पिलाएं। ये दूध टीके का काम करती है, बच्चे को कभी कोई मसला नहीं होगा। और जरूरी है कि बच्चे को अपना ही दूध पिलाया जाए और 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ और सिर्फ दूध पिलाया जाए, यहाँ तक कि पानी भी न दिया जाए, शहद की भी जरूरत नहीं है। बदकिस्मती से हमारे यहाँ कुछ रिवायतें हैं, जिन लोगों ने इजाद किए वक्त के साथ साथ, कोई बेटी पैदा हो गई, कोई तगड़ा खातून को ले आए ताकि वो उसको गुट्ठी दे या मुंह में कावा दे ताकि ये इसकी तरह तगड़ा बने। या हम मुख्तलिफ इलाकों में काम किया है, वहाँ पे ऐसे भी होते हैं हमारे पठान भाई के
वहाँ बच्चे को मुंह में अपना लुआब दे देते हैं, तो हम तो माफी चाहता हूँ ऑलरेडी 90% नस्वार खाते हैं, तो बच्चे को पहले ही दिन से ही नस्वार कर, तो वो जिस्म वो स्टमक इस काबिल नहीं होता कि इन चीज़ों को बर्दाश्त करे, फिर बेटे को प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है। तो सिर्फ और सिर्फ हम कोशिश करेंगे कि 6 माह तक सिर्फ और सिर्फ अपना दूध, और पहले वाले दूध भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन इन 6 महीनों के दौरान दूध के साथ साथ इनको मुख्तलिफ बीमारियों से बचाव की टीकाजात लगानी चाहिए। ये टीके पहले 15 दिन में या पहले घंटे में BCG का होता है, और फिर आपको पेंटा 1, पेंटा 2, पेंटा 3 और मीजल की मुख्तलिफ टीके लगाने चाहिए, जो 16 महीने तक जारी रहेंगे, और 16 महीने तक उनको डॉक्टर बुलाएंगे, उनको मुख्तलिफ किस्म के टीके लगाएंगे, और जिससे बच्चे की सेहत और आने वाली ज़िंदगी के लिए वो सारी प्लानिंग हमारी जारी रहेगी, ताकि वो एक सेहतमंद जिस्मानी तौर पे और ज़हनी तौर पे एक सेहतमंद बच्चा हो। तो दूध से कोई इनकार नहीं कर सकता। बदकिस्मती देखिए हमारी कि कभी हमने भेड़ को नहीं देखा है, भेड़ के बच्चे को नहीं देखा है कि वो बकरी की दूध पी रहा हो, कभी बकरी को नहीं देखा है कि वो हाथी का दूध पी रहा हो, कभी ऊंट को नहीं देखा है कि वो किसी और जानवर का दूध अपने बच्चे को पिला रही हो। लेकिन हम खुद अशरफुल मखलूक़ात कहने वाले हम इंसान अपने बच्चों को गाय का दूध भी देते हैं, बकरी का दूध भी देते हैं, भेड़ का दूध भी देते हैं, और कुछ भी ना हो तो फार्मूला केमिकल से मिला हुआ दूध देना शुरू कर देते हैं। इन सब चीज़ों से परहेज करें। अल्लाह ने आपको दूध देने की सलाहियत दी है, ये अल्लाह का मेहमान है। आप भी दूध आएगा, दूध की अगर कोई शिकायत है तो एक तरीका है दूध देने का। आप 10 मिनट पहले 2 गिलास पानी पिए, फिर सारे घर के सारे काम छोड़कर अपने बच्चे के साथ हो जाए, उसकी पोजीशनिंग का ख्याल करें, ऐसी पोजीशन में रखे कि वो आसानी के साथ निपल छोड़े और आसानी के साथ मुंह में रखे, और अटैचमेंट पैदा करो, उसके तरफ देखो, अल्लाह से शुक्रिया अदा करो, अल्लाह का शुक्रिया अदा करो कि उन्होंने कितना प्यारा बच्चा आपको दिया है। जब आप उनके साथ ये अटैचमेंट डेवलप करते हैं तो खुद ब खुद दूध आना शुरू हो जाता है। शायद एक दफ़ा न हो, दूसरी दफ़ा न हो, लेकिन मेहनत ज़रूर जारी रखनी चाहिए। ये बहाना किसी भी औरत के लिए नुकसानदेह है कि वो अपने बच्चों को दूध नहीं दे रही या मुझ में दूध नहीं है, क्योंकि दूध होता है ये अल्लाह की तरफ से है। हाँ, जो माएँ दूध नहीं पिलाती उनको सेहत की तकलीफ हो सकती है। हाँ, अगर दूध न दे तो ब्रेस्ट कैंसर जैसी बीमारी लगने का खतरा हो सकता है, और ख़वातीन के दरमियान और भी बहुत सारे मसाइल से पैदा हो सकते हैं। दूध देना फ़र्ज है। कुरान में अल्लाह ताला ने सूरह बकरा में फरमाया है कि अपने बच्चों को 2 साल तक मुकम्मल अपना दूध पिलाओ। तो इसी के साथ मैं प्रोग्राम से इजाज़त चाहता हूँ, और आप लाइक करें, आप सब्सक्राइब करें, आप बेल आइकन पे क्लिक करें। आप ऐसा नहीं करेंगे तो हम मुश्किल से ये काम कर रहे हैं, हम उसको आगे जारी नहीं रख पाएंगे। तो आपका साथ रहेगा, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। जावेद अफरीदी को इजाज़त दीजिए लाइट हाउस के चैनल से। अस्सलाम वालेकुम।